Good morning, everyone. Let us start with the practical problems of share capital. You just please watch out the previous video also, in which we discussed about the various types of share capital and the concept of share capital. Okay, so let us understand the next thing. Now, see, we have to understand that why these entries are made such like that. Okay, now yesterday we discussed about it, that when the company receives the applications for the shares, right, for the issue of the shares, then the company receives an amount also along with the application. Okay, so that application money, now one thing I always told you in previous videos, we've watched it, that always think from the business point of view. यहाँ business company है जो issue करे shares, so something from the company's point of view, right? Now the company is receiving the shares. Company is receiving the shares. Company, please, guys, everybody understand, please. Please watch the videos of my previous videos of personal account, nominal account, and real account. If you want to understand the concept of debit and credit, please watch the videos of personal account, nominal account, and real account, and why the entries are made, general entries are made like that. Before that, do not do these practical questions, otherwise you have to mug up every time. You have to mug up. Okay, so please watch the previous videos of personal account, nominal account, and real account, and why the entries are made like that. Okay, then the chapter will be very easy for you. Now, when I say bank account to share application account, now it will be what account is this? Bank account is a personal account. It is an artificial account. You remember? Because it is an artificial person account, which comes in a personal account, right? So, and share application account is your, again, a personal account, because it is related to some kind of some shareholders who have provided the money to the company. Okay. Now, this what I have to explain the concept, that why these entries are like that. Okay, so one easy way is you mug up these entries and write the answers. ठीक है, लेकिन दूसरा तरीका हमारा ये है कि हम एक लॉजिक तरीके से चले और उसको इतने अच्छे से समझें कि हमको याद ही नहीं करना पड़े. अकाउंट इज नॉट टू मग अप, अकाउंट इज टू अंडरस्टैंड. और इससे क्या होगा, हमारे सारे आंसर्स बिल्कुल सही होंगे, हमें कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है. एक तो ये तरीका है कि आप इसको अभी बंद कर दें वीडियो को और नहीं देखें, क्योंकि आपको रटना ज़्यादा अच्छा लगता है. एक होता है कि आप इसको समझ के आगे चलना चाहेंगे, जिससे आपको सारे क्वेश्चंस बिल्कुल बहुत आसानी से सॉल्व हो जाए आपके. शुरू में आपको लगेगा थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा कि ऐसे हर चीज़ सोच के करें हम, लेकिन बाद में जब 50-60 क्वेश्चंस आप कर लोगे, आप ऐसे 4-5 क्वेश्चंस ऐसे करोगे समझ के, और 50-60 क्वेश्चंस तक ऐसे आपको मजा आएगा करने में, देन यू विल रियली फील गुड एंड यू विल गेट गुड मार्क्स. ठीक है, तो करके देखते हैं एक बार, इस तरीके को भी करके देखते हैं बिना रटे. ठीक है, सो अब देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा आपको, करके देखना एक बार आप इसे. इसमें से ना सिक्योरिटी प्रीमियम की लर्न करना पड़ेगा, ना डिस्काउंट की प्रॉब्लम होगी, ना कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है आपको, बहुत मजा आएगा. ठीक है, सो अब देखते हैं, करते हैं कोशिश. अब बैंक में पैसा जो आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट का हो रहा है. ठीक है, क्योंकि बैंक इज अ रिसीवर. अब पर्सनल अकाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. थिंक फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, हु इज द रिसीवर? बैंक. So from the business point of view, the receiver, debit the receiver. So receiver is bank, so bank account debit. Now giver कौन है इधर? Now share personal account, share application account is again representative personal account, because these are the persons who have provided the money to the business. So debit the receiver, credit the giver. They are the giver of the money to the business, to the company. They provided the application money to the business, so they are the givers. No one will explain you the concept like this, because this concept is little hard to understand. So that is why I'm explaining you the concept, because it is very very important if you have to understand accounts. ठीक है, मैं एक बार और बता देती हूँ. बैंक अकाउंट डेबिट इसलिए हुआ, कोई बैंक क्या है? पर्सनल अकाउंट. पर्सनल अकाउंट में फॉर्मूला क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. नहीं, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, बैंक गिवर है कि रिसीवर है? रिसीवर है, क्योंकि बैंक किसके अकाउंट में आया? बैंक में रिसीवर के अकाउंट में आया, बिजनेस के बैंक में आया. अब देखिए, शेयर एप्लीकेशन क्या है? जो बाहर के लोगों ने शेयर्स का अलॉट एप्लीकेशन मनी दिया हुआ है. ठीक है ना, शेयर का एप्लीकेशन मनी दिया है, तो ये एप्लीकेशन मनी इन लोगों ने दिया है, उन लोगों ने दिया है जो कंपनी में अप्लाई कर रहे थे शेयर्स के लिए. तो एप्लीकेशन मनी आ गई है.
ये एप्लीकेशन मनी जो है उन लोगों ने दिया है, तो उन लोगों के नाम पे है ये, दैट मींस रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो गया, या फिर उनको नाम भी आ सकता है, पर्सनल अकाउंट भी हो सकता है, पर्सनल अकाउंट भी कह सकते हैं, पर्सनल अकाउंट में ही आएगा ये, ठीक है ना, पर्सनल अकाउंट भी ले सकते हो इसे, पर्सनल अकाउंट भी कह दिया आपने तो पर्सनल अकाउंट ही है। तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, हु इज द गिवर ऑफ द शेयर, this giver of share applications to the business, who is the giver of share application money to the business, share application money to the business, these persons, so that is why this is credit, गिवर है ना, ये आपके गिवर है। अब नेक्स्ट देखिए, एप्लीकेशन, अमाउंट रिसीव विद एप्लीकेशन, एप्लीकेशन किसने दी है आपको, इन शेयर होल्डर्स ने दी है, तो शेयर होल्डर्स नहीं लिखते, हम शेयर एप्लीकेशन लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए, अब ये तो शेयर एप्लीकेशन का जो पैसा होता है मेरा, मैं कहाँ रखूंगी, बिजनेस से शेयर एप्लीकेशन के पैसे को कहाँ रखेगी, वो क्या चीज है, वो उसकी शेयर कैपिटल है भाई, वो क्या चीज है, वो उसकी शेयर कैपिटल है या नहीं, पहले मुझे बताओ। बिजनेस में अंदर जो पैसा आता है वो बिजनेस कहाँ डालती है, शेयर कैपिटल में डालती है, दैट मीन्स शेयर एप्लीकेशन का जो सारा पैसा है वो कहाँ जाएगा, बिजनेस की शेयर कैपिटल के अंदर जाएगा, दैट विल बी एडेड टू द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए आप लोग, जब हम शेयर कैपिटल इशू करते हैं कैश से, तो एंट्री क्या बनाते थे हम लोग, कैश अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, रिमेंबर पहले वाली एंट्री, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 30,000, तो क्या लिखते थे एंट्री हम लोग, कैश अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, क्योंकि कैश बिजनेस में आता है। अब यहाँ पर जो कैश हमारा आया है वो कहाँ से आया है, शेयर एप्लीकेशन से आया है, जो शेयर अप्लाई करने लोगों के एप्लीकेशन मनी से आई थी वहां से पैसा आया है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पैसा हमें कैश डायरेक्टली ऐसे नहीं आया है, यहाँ पैसा एप्लीकेशन मनी से आया है, तो पैसे को हम कैश में नहीं लिख सकते, हम क्या लिखेंगे, शेयर एप्लीकेशन वाला पैसा जो है वहां से वो वाला पैसा हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर रहे हैं। समझ में आ रहा है। अब आप कहोगे मैम आपने तो डिफिकल्ट बना दिया हमारे लिए क्वेश्चन, हम तो रट रहे थे, तो रट लो भाई, मना किसने किया, रट लो और कर लो एक आध गलती बीच में, जब शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा, डिस्काउंट आ जाएगा, तो और गलतियां कर लेना, रीइशू आ जाएगा, फीचर आ जाएगा, और गलतियां कर लेना, क्योंकि सब कितना रटोगे। अब दूसरी चीज देखो, अमाउंट ड्यू एंड अलॉटमेंट। अब मैंने तुमको कल एक बात बताई थी कि जब ये एप्लीकेशन मनी आ जाता है उसके बाद बाकी इंस्टॉलमेंट्स भी होती हैं जो इसको देनी होती हैं, ठीक है। अब बाकी इंस्टॉलमेंट्स के लिए क्या होता है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अब शेयर, अच्छा अब इसमें पैसे कैसे रेज करेंगे हम, अब तुम कहोगे मैम इसमें तो उल्टा हो गया, अब पहले शेयर एप्लीकेशन का पैसा आ गया, अब इसमें फिर उल्टी एंट्री करनी पड़ेगी, तो याद रखना बहुत मुश्किल हो गया, इसीलिए मैं तुमको कह रही हूँ कि समझ के पढ़ो, रटो मत। अब सुनो, अमाउंट ड्यू अलॉटमेंट, अब क्या होता है, अब एक बार तो पैसा आ जाता है कंपनी के पास, एप्लीकेशन के थ्रू आ जाता है, लेकिन सेकंड टाइम में क्या होता है, कंपनी अब कहती है भाई पहला पैसा तो आ गया हमारा, अब मेरा अलॉटमेंट का पैसा दो। अब कंपनी की सपोज 10 रुपए का शेयर है, ठीक है, 2 रुपए का शेयर के पैसे के हिसाब से, 2 रुपए के पैसे के हिसाब से शेयर्स आ चुके हैं, मतलब टोटल शेयर सपोज अगर 1 लाख के इशू हुए थे और 1 लाख के सब लोगों ने 1 लाख के हिसाब से 2 लाख, 1 लाख के हिसाब से इंटू 2 करके 2 लाख पैसे आ गए हैं, तो बाकी 8 रुपए के हिसाब से 1 लाख के ऊपर पैसे आने बाकी हैं अभी, ठीक है, 1 लाख शेयर्स पे भी 8 लाख रुपए तो आने बाकी हैं, तो वो क्या, उसके लिए क्या करेगी कंपनी, अब 8 लाख को सपोज ये अलॉटमेंट का अमाउंट जो है वो 4 का है, ये 2 का है, फर्स्ट कॉल 2 की है, फर्स्ट कॉल भी 4 रुपीज की है, ठीक है, ऐसे है। अब 2 4 4 8 9 10 रुपए पूरे हो गए ना, ठीक है, तब वो 4 रुपए की अलॉटमेंट है, अब 4 रुपए, अब पर शेयर पे 4 रुपए, अब कंपनी कहेगी भाई मुझे, अब कंपनी ने चिट्ठी डाली, एप्लीकेशन डाली कि भाई मुझे 4 रुपए के हिसाब से मेरे बाकी शेयर, अपने जो तुम्हारे पास जितने भी शेयर्स हैं, 1 लाख के टोटल शेयर, जितने भी शेयर होल्डर्स के पास 1 लाख के शेयर्स हैं, वो सब 4 4 रुपए के हिसाब से मुझे पैसे दो, सेकेंड इंस्टॉलमेंट शेयर कैपिटल के हिसाब से, सेकेंड इंस्टॉलमेंट ऑन द शेयर्स, जैसे सपोज करो किसी के पास जितने भी शेयर्स हैं, बस एक 4 मेंबर्स हैं, उनके पास 20,000 शेयर्स, 25 4 शेयर होल्डर्स, इनके पास 25,000 25,000 25,000 25,000 शेयर्स,
सबको 4 रुपए के हिसाब से 25,000 इंटू 4, 25,000 इंटू 4, 25,000 इंटू 4, 25,000 इंटू 4, ऐसे सबको अपनी इंस्टॉलमेंट देनी है कंपनी को। अब कंपनी इसके लिए क्या एप्लीकेशन रेज करती है, एंट्री शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये क्या होता है? शेयर कैपिटल ये हमारा है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। जैसे हमारा कैपिटल अकाउंट होता है ना, ये भी हमारा रिप्रेजेंटेटिव कैपिटल पर्सनल अकाउंट होता है, बिकॉज इसमें भी हमें कैपिटल जो है वो हमारी कैपिटल हमें ओनर दे रहा है, ठीक है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि ये जो पैसा है वो हमें किससे लेना है? किससे लेना है? शेयर होल्डर्स से लेना है, ठीक है। सो अगेन शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब क्योंकि अब ये एंट्री जो है ये पहले आएगी, ये पहली एंट्री क्यों आएगी? क्योंकि यहाँ पर अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू है हमारा, ये अलॉटमेंट अमाउंट हमारा ड्यू। पहले हम क्या करते थे, ये वाला अमाउंट जो है बाद में करते थे, अब पहले ये एंट्री हो रही है। क्यों? क्योंकि अब हम उनसे रेज कर रहे हैं पैसा, हम उनसे रेज करवा रहे हैं वो पैसे को। अब हमारा जो शेयर कैपिटल जो अमाउंट ड्यू होएगा वो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट से ड्यू होएगा। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कर दिया था आपने, क्योंकि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट क्यों किया था आपने? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट किया था बिकॉज वो पैसा आपका चला गया था, उसमें एप्लीकेशन के थ्रू आया था। अब ये पैसा आपका अलॉटमेंट के थ्रू आएगा, दैट मीन्स शेयर अलॉटमेंट अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट, राइट? दैट मीन्स डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक है। अब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है आपको, तो क्या आ जाएगा? ठीक है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब नेक्स्ट इज अमाउंट ड्यू एंड अलॉटमेंट। ये अमाउंट हमारा, ये जो हमारा अलॉटमेंट आएगा, आपका पैसा जो हमारा आएगा, ये अलॉटमेंट का पैसा आएगा, ये पैसा हमारा अलॉटमेंट से आएगा। ये जो पैसा है वो कैश को रिप्रेजेंट कर रहा है, मनी रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा। तो मनी किसके पास आएगा? ये डेबिट द रिसीवर, या बिजनेस रिसीवर है इस मनी का। यहाँ जो ये शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट है, ये मनी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस बात को ध्यान रखिए। रिप्रेजेंटिंग द मनी ओवर हियर विच विल कम थ्रू अलॉटमेंट, ठीक है। तो डेबिट द रिसीवर बिकॉज दिस पर्सन हैज नॉट पेड द मनी टू मी, persons have not paid the money to me but will be they pay money through allotment, तो डेबिट द रिसीवर, ठीक है। बिकॉज here the money is not being, कहते हैं ना, जैसे money has not been paid to me but it will be paid through allotment, so receiver is a business, so debit the receiver, credit the giver. So share allotment account debit to share capital account. Now when the allotment money is received, then what you will do, allotment हट जाएगा। अब देखो ये कैसे चेंज हुआ, अब मुझे अलॉटमेंट से पैसे आ गए हैं, तो अलॉटमेंट हटा दूंगी मैं, कैसे हटाऊंगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब ये अलॉटमेंट अकाउंट कट जाएगा। सी अब कितना रटोगे आप, जब तो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा सारा गड़बड़ हो जाएगी ना। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब देखो जब बैंक से पैसा आ गया, अलॉटमेंट मिल गया, तो बैंक से पैसा आ गया, बैंक से पैसा आ गया, तो अलॉटमेंट अकाउंट कैंसिल हो गया, नहीं हो गया? तुम इसका बैंक शेयर कैपिटल लिखने वाले थे। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। कि नहीं रट सकते बेटा, इतना नहीं रट सकते हम लोग, इसलिए आपको समझना जरूरी है, ठीक है। अब देखो बैंक टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये अलॉटमेंट अकाउंट आपको कैंसिल हो गया। क्यों? क्योंकि ये जो बैंक अकाउंट था टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये कैंसिल इसलिए हो गया क्योंकि पहले जो पैसे आ रहे थे हमें शेयर अलॉटमेंट से आ रहे थे, हमारे पास पहले कैश नहीं था। देखो हम जब कैश होता है हमारे पास, जब हमारे पास कैश होता है तो कैसे होता है, हम क्या लिखते हैं, एंट्री क्या बनाते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब कैश नहीं मिल रहा है, हमें शेयर अलॉटमेंट का अमाउंट दिख रहा है जो हमें मिलने वाला है अलॉटमेंट से, तो हमने लिख दिया शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। लेकिन अगर मुझे कैश मिल जाएगा तो ये वाली एंट्री जो है वो कैंसिल हो जाएगी ना, ये वाली जो एंट्री है वो अलॉटमेंट यहाँ कैंसिल हो जाएगा, डेबिट और क्रेडिट तो कैंसिल हो गया, तो एंट्री क्या बन गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, तो बैलेंस हो गया ना वो चीज, ये चीज बता रहा है वो। अब देखो
फर्स्ट कॉल बीइंग ड्यू, अब ऐसी फर्स्ट कॉल ड्यू है मतलब पैसे मिल जाते तो क्या एंट्री बनती, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल फर्स्ट कॉल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, लेकिन पैसे भी मिले नहीं है, फर्स्ट कॉल का पैसा भी मिलने वाला है, दैट मीन्स द बिजनेस इज द रिसीवर ऑफ द फर्स्ट कॉल मनी, सो डेबिट द रिसीवर पर्सनल अकाउंट। तो शेयर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट इट इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट डियर, ठीक है। सो रिप्रेजेंटेटिव फर्स्ट कॉल अकाउंट है इसलिए बिकॉज रिप्रेजेंटिंग द अमाउंट ऑफ मनी विच विल बी कॉल्ड अप बाय द शेयर होल्डर्स ऑन द फर्स्ट कॉल मनी, रिप्रेजेंटिंग सम काइंड ऑफ मनी टू बी कॉल्ड अप बाय द शेयर होल्डर्स ऑन द फर्स्ट कॉल, ठीक है। So that is why it is representative personal account. Shares first call account debit to share capital account. When the business will receive the first call amount money, then bank account debit to share first call account, and then देखो यहाँ भी एंट्री बराबर हो गई, यहाँ भी बैंक अभी एंट्री क्या बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है बिकॉज इट इज अंडरस्टूड। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, आई थिंक कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया है। अब क्वेश्चन करते हैं। श्याम ने इशू किए 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each at a premium of ₹10 per share payable at ₹10 per share on application balance and allotment. Bank account debit to bank shares application account. Bank account debit to share application account. बैंक देखो बैंक ने इसने इशू किए 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each at a premium of ₹10 per share. So 10 per share on application and balance and allotment. इसमें दो ही एंट्री बनानी है आपको। प्रीमियम क्वेश्चन नहीं करा रही मैं पहले आपको, प्रीमियम थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए भी, सिंपल सा करते हैं। अच्छा प्रीमियम वाला ले रखा है मैंने सारा, तो पहले ये वाला करते हैं अभी आपके लिए, थोड़ा सा सिंपल वाला ही करते हैं। Okay. Akshaya Limited invited applications of 10,000 shares of ₹10 each. The amount is payable on 3 on application. देखिए 4 on allotment balance, 3 on first call. The issue was subscribed and amount duly received. ये सिंपल क्वेश्चन करते हैं आज की क्लास में। Now देखिए 10,000 शेयर्स इशू किए थे 10 रुपए के हिसाब से, अमाउंट इज पेबल 3 एप्लीकेशन के साथ ही आ गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, पैसा पहले ही आ गया 3 रुपीज के हिसाब से, 10,000 शेयर्स थे टोटल, 10 रुपए ईच मतलब टोटल वैल्यू ऑफ शेयर 10 रुपए थी, इसमें से इंस्टॉलमेंट पहले आती है 3 रुपए के हिसाब से आई, फिर 4 रुपए के हिसाब से हमें लेनी पड़ेगी, बाद में मिलेगी, फिर 3 रुपए के हिसाब से बाद में लेनी पड़ेगी। तो देखिए पहले जब 10 रुपए लिखा रहता है इसका मतलब ये है कि 10 रुपए टोटल वैल्यू ऑफ द शेयर है, जिसकी इंस्टॉलमेंट पहले तो हमें 3 रुपए एप्लीकेशन के साथ ही, हम जब लेटर लिख के भेजते हैं कि हमें लिख के भेजते हैं, सब्सक्रिप्शन भेजते हैं कि हम सब्सक्राइब कर रहे हैं आपके शेयर्स की, कंपनी के शेयर्स को, तभी भेजनी पड़ती है, उसके साथ ही एप्लीकेशन के साथ ही भेजनी पड़ती है, ठीक है। तो 3 रुपए तो आप दे चुके हो, उसके बाद 4 और 3 जो है वो बाद में देने पड़ते हैं शेयर होल्डर्स को, ठीक है। तो अब क्या हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 3 रुपए के हिसाब से कर दो, 10,000 शेयर्स है टोटल, 10,000 into 3 30,000। नाउ अब उसके बाद क्या, अलॉटमेंट की एप्लीकेशन की ड्यू करनी पड़ेगी, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 30,000, कैसे, sorry, we have to transfer this application to bank, sorry, then share application account debit to share capital account is 30,000 because you have to transfer that money to share capital, ठीक है। देन इज शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, दैट इज ये ऑनलाइन समझ में आ गई दोनों, देखो एप्लीकेशन क्लियर समझ में आ गई। अब इसमें देखिए शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, क्योंकि इस वाले के अंदर हमें क्या करना, ड्यू कर रहे थे हम इसको, जो हमने अभी समझा, शेयर अगर मिल जाती तो कैश लिखते, नहीं मिली है तो क्या करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब नेक्स्ट एंट्री बताओ क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कैंसिल करेंगे ना इसको, और भी 3 फाइनल कॉल है, ठीक है। अब देखिए शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, फाइनल कॉल 30,000 थी, 3 into 10,000 फाइनल कॉल थी। अब जब फाइनल कॉल मिल गई है तो क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो आंसर क्या हो गया 30,000। क्लियर हुआ, ये समझ में आया कॉन्सेप्ट, clear? So thank you everyone, thank you so much. Now in the next video we'll discuss about the premium questions and the difficult questions as well as the balance sheet of the accounts. Thank you so much.